सब लोगों को जय मसीह की। This Sunday is the 27th of September and on the 29th of September we celebrate the Saint Michael and All Angels Day. अगर हम रेवलेशन की पुस्तक को देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि हेवन के अंदर सेटन के साथ Michael the fighter angel and his other angels, they all fought with Satan and Satan had no place and Satan was thrown along with his angels on the earth. And we celebrate this day, St. Michael's and All Angels Day on 29th, but 27th being the closest Sunday to 29th, we celebrate it as St. Michael's and All Angels Day. तो आज हम लेक्शनरी रीडिंग में कुछ 29th की रीडिंग्स लेंगे और कुछ रीडिंग्स जो हैं वो 27th की लेंगे so that we may understand the point of the day in a very better way. प्रभु हम सबके साथ हो। Let us pray. प्यारे नीम खुदावंद हम तेरे पास आते हैं। आपने प्रभु परमेश्वर हमारे पूर्वजों के दिलों में डाला कि उन्होंने इस जगह पर इस चर्च को एस्टैब्लिश किया। आपने खुदावंद इस चर्च के द्वारा बहुत सी विटनेस लोगों के बीच में रखी। बहुत से लोगों ने यहाँ पर अपनी मिनिस्ट्री को किया और बहुत से लोगों ने खुदावंद यहाँ पर तेरे से दुआएं मांगी और उन दुआओं का जवाब उन्हें मिला। प्रभु परमेश्वर हम पूरी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं कि आप अपनी अगुवाई में हम सबको रखें। कोविड के ज़माने में जब नंबर ऑफ कोविड केसेस इतने बढ़ गए हैं, खुदावंद चर्च लग नहीं पा रहे हैं, मगर प्रभु परमेश्वर इट इज बेटर टू सेव द मैनकाइंड। खुदावंद तेरा वचन भी कहता है जब तक परमेश्वर का गुस्सा टल ना जाए तुम अपने आप को छिपा कर रखो। होने दे खुदावंद कि हम अपने घरों में तुझसे दिल लगाए रखें, तुझसे प्रार्थना करते रहें और अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर आपके वचन को उतारने पाए और खुदावंद हमारे को हर समय इस बात का we may be conscious that हमें तेरी राह पर चलना है। और प्रभु परमेश्वर हर एक ईगल से, हर एक गंदे थॉट से, खुदावंद हर एक ऐसे विचार से जो हमें तेरे वचन से दूर करता है, तेरे पथ से हटाता है, हमें परे रखें और हमें ऐसी तौफीक और ताकत दें कि हम खुदावंद तेरे लिए फल लाएं और हमारा फल तेरे में होकर बना रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम अपना पहला गीत गाएंगे।
समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी ओल्ड टेस्टमेंट की पुस्तक 2 Kings chapter 6 verse 8 to 17, and Mr. Enoch Simon will lead us in the reading of the text. Hear the word of the Lord, as it is written in the second book of Kings, chapter 6, verses 8 to 17. Second book of Kings, chapter 6, beginning at verse 8. Once, when the king of Syria was warring against Israel, he took counsel with his servants, saying, "At such and such a place shall be my camp." But the man of God sent word to the king of Israel, "Beware that you do not pass this place, for the Syrians are going down there." And the king of Israel sent to the place about which the man of God told him. Thus he used to warn him, so that he saved himself there more than once or twice. And the mind of the king of Syria was greatly troubled because of this thing. And he called his servants and said to them, "Will you not show me who of us is for the king of Israel?" And one of his servants said, "None, my lord." "O king, but Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom." And he said, "Go and see where he is, that I may send and seize him." It was told him, "Behold, he is in Dothan." So he sent there 3 horses and chariots and a great army, and they came by night and surrounded the city. When the servant of the man of God rose early in the morning and went out, behold, an army with horses and chariots was all around the city. And the servant said, "Alas, my master, what shall we do?" He said, "Do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them." Then Elisha prayed and said, "O Lord, please open his eyes, that he may see." So the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. This is the word of the Lord. This समय we will have the reading of the Psalm 103 verses 17 to 22, and Mr. Emmanuel Singh will lead us in the reading of the text. परमेश्वर का वचन जो लिया गया है भजन संहिता 103 उसकी 17वीं आयत से लेकर के 22वीं आयत तक यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा अपने भक्तों पर सदा सर्वदा और उसकी धार्मिकता उनके नाती पोतों पर बनी रहती है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों पर चलना याद रखते हैं। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया है और उसका प्रभुत्व सब पर शासन करता है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े पराक्रमी हो और उसके वचन की पुकार को सुनते हो, तुम जो उसके वचन का पालन करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके सेवकों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी रेवलेशन की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी 7 से 12 आयत, और मैं संगीता सरन इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। प्रकाशित वाक्य उसका 12 बाब 7 से 12 आयत तक। प्रकाशित वाक्य उसका 12 बाब 7 से 12 आयत तक। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है,
और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उन पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। ये परमेश्वर का वचन। The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Matthew, chapter 16, beginning at the 13th verse, and Mr. Arun Das will lead us in the reading of the Gospel. इंजील मुकद्दस मती की इंजील उसका 16वां बाब 13वीं आयत से यूं शुरू होती है। यीशु कैसरिया फिलिपियों के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझसे प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊँ और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। उस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। Let us pray. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. अगर हम आज की गॉस्पेल रीडिंग को पढ़ते हैं तो यीशु अपने चेलों को सिजेरिया फिलिपाई लेके गए, और सिजेरिया फिलिपाई वो एक जगह थी जो कि पहाड़ों में पाई जाती है, ऊंची जगह है, ठंडी जगह है, और वो जो है एक माउंट हरमोन के पास है। और सिजेरिया फिलिपाई एक ऐसी जगह है जहां उस समय जिस समय यीशु मौजूद थे वहां बहुत सारे टेम्पल्स थे। सबसे पहला जो वहां टेम्पल था वो एक पान नाम के गॉड का था, और वो टेम्पल जो था, जो सिजेरिया फिलिपाई की जगह थी, वो उसको पहले बोला जाता था पनियास। अब पनियास आई था नाम पान जो वहां का गॉड था उसके नाम पे। वहां एक केव है जिसमें से रिवर जॉर्डन निकलती है, तो उस रिवर के निकलने की जगह पे कहा गया था पान का यहाँ पे वर्क हुआ था। फिर हम देखते हैं सीजर के टाइम में फिलिप जो कि हेरोड का भाई था, हेरोड एंटिपास का भाई था,
वो वहां का राजा हुआ करता था, और फिलिप ने एम्परर को खुश करने के लिए, क्योंकि एम्परर ने फिलिप को ये जगह दे दी थी पनियास, तो उसने उस जगह पर एम्परर को खुश करने के लिए एम्परर के लिए मंदिर बना दिया। और वो एम्परर को सीजर बोला करते थे, तो सीजर के लिए एक मंदिर बना दिया, तो उस जगह का नाम पनियास से हटकर हो गया सीजेरिया फिलिपियाई, यानी मतलब वो जगह जहां पर फिलिप ने सीजर के लिए एक मंदिर बना दिया है, तो इसलिए इसका नाम पनियास से चेंज हो गया, सीजेरिया फिलिपाई का जगह पड़ गया, और सीजेरिया फिलिपाई में एक मंदिर और बन गया, और वो था सीजर के नाम पर। फिर उसके बाद हम देखते हैं वहां पर एक और मंदिर था ज़्यूस का। इस प्रकार से टोटल वहां पर 5 बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे, और यीशु अपने चेलों को वहां उस पहाड़ों पर ले गए, क्योंकि हम देखते हैं माउंट हरमन द हाईएस्ट माउंटेन है वहां का, और उसकी जो हाइट है कोई 9000 फीट है, तो आप समझ सकते हैं स्नो कवर्ड पीक्स हैं, और सीजेरिया फिलिपाई से वो स्नो कवर्ड पीक्स दिखाई देती हैं, तो वहाँ वेदर ठंडा है, और यीशु वहां पर लेके गए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे डिवोटीज आते थे, और क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिफरेंट विश्वास के लोग वहां आते थे, वहां वो अपने 12 चेलों को वहां लेके चले गए, और उन्होंने 12 चेलों के सामने एक प्रश्न किया। अब ये जो ईयर था यीशु की मिनिस्ट्री का 2 साल हो चुके थे, 2.5 साल हो चुके थे, और यीशु अपनी 2.5 साल की मिनिस्ट्री कर चुके थे, और उनकी मिनिस्ट्री इस वर्ल्ड में सिर्फ 3 साल की थी। तो हम देखते हैं ऑलमोस्ट जाने का समय आ रहा था, 6 महीने बाद उनकी मिनिस्ट्री इस वर्ल्ड में खत्म होने वाली थी। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश की अपने चेलों से, क्योंकि चेलों का मन को वो जांचना चाह रहे थे कि वो अभी तक खुदावंद को कितना पहचान पाए, यीशु को कितना पहचान पाए। तो उन्होंने कहा अपने चेलों से कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो किसी ने कहा लोग आपको एलाइजा कहते हैं, कोई आपको जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, कोई आपको जरमाया कहते हैं, कोई आपको कोई और प्रॉफिट्स कहते हैं। ये ऐसे थॉट्स आए क्यों? अगर हम एपोक्रिफल बुक को पढ़ते हैं, यानी मतलब 2 मैकाबियस चैप्टर 2 वर्स 4 to 8, तो वहां यूं लिखा है कि जरमाया ने जो टर्बनेकल था, और जो कवरेंट बॉक्स था, और जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस था, नाउ 3 चीजें, यानी टेंट ऑफ द टर्बनेकल, द ऑल्टर ऑफ इंसेंस एंड द आर्क ऑफ द कवरेंट, इन तीनों को उस किताब में लिखा गया है 2 मैकाबियस में कि इन चीजों को यिर्मयाह ने अपने देखते हुए अपने सामने एक माउंट में, यानी माउंट नीबो के अंदर जाके किसी एक केव में छुपा दिया। अब ये माउंट नीबो कौन सा माउंटेन था? ये माउंट वो माउंटेन था जहां से मूसा को खुदावंद ने प्रॉमिस लैंड दिखाया था, कि कनान के पास था, और कनान का देश वहां से दिखाई देता था, और उसने कहा कि तू इस जगह को देख ले, दूर से तू देख सकता है, जेरिको वहां से दिख रहा था, और परमेश्वर ने मूसा से कहा तू जॉर्डन रिवर को क्रॉस नहीं करेगा, मगर तू यहां से बस उस जगह को देख पाएगा, प्रॉमिस लैंड को देख पाएगा। तो माउंट नीबो पे ऐसा 2 मैकाबियस बताती है कि जरमाया ने वहां पर वो तीनों चीजें छुपा दी, और इसलिए छुपा दी ताकि वो प्रिजर्व रहे, ताकि वो चीजें बेबीलोनियंस के द्वारा डेसिक्रेट ना की जा सके। ऐसा प्रभु, ऐसा एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट, यानी मतलब 2 मैकाबियस चैप्टर 2 वर्स 4 to 8 में लिखा हुआ है। यानी लोगों के अंदर एक विश्वास था कि मसीहा के आने से पहले यिर्मयाह फिर से आएंगे, और वो जो हैं वो आकर उन चीजों को बाहर निकालेंगे माउंट नीबो में से, जिस केव में वो छुपाई गई हैं उसमें से निकाली जाएंगी, और टर्बनेकल और आर्क ऑफ द कवरेंट और ऑल्टर ऑफ इंसेंस, ये सब चीजें बाहर फिर से आ जाएंगी। तो ये एक थॉट था, और मैकाबियस की ही पुस्तक में ये भी बिलीव था दिया हुआ कि एक जर्मिया है, वो कहीं पहाड़ों में रहते हैं, और उनकी बड़ी सी लंबी सी दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी है, और वो
जो है वो उन चीजों की रक्षा कर रहे हैं। और जूडस मकैबियस को उन्होंने एक अच्छी चमकती हुई तलवार दी ताकि वो उस तलवार से रूल करें। ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ सेकंड मकैबियस की पुस्तक और यीशु से कोई 185 साल पहले की ये बातें हैं। तो परमेश्वर, लोग वेट कर रहे थे कि एलाइजा आएंगे मसीहा के आने से पहले, जरमाया आएंगे, उन चीजों को निकाल के सामने रखेंगे। और दिगर लोग कह रहे थे कि जॉन द बैप्टिस्ट, उनका गला क्योंकि जो हेरोड एंटिपास ने कटवा दिया था, तो हेरोड तो यीशु जॉन द बैप्टिस्ट का रूप धारण करके आ गए। तो डिफरेंट थॉट्स थे। और यीशु ने जब उनसे पूछा कि एंड व्हाट डू यू से दैट आई एम, लोग मुझे क्या कहते हैं, उन्होंने बताया लोग ये कहते हैं। और फिर यीशु ने पूछा और तुम मुझे क्या कहते हो? तो 12 में से पतरस बोला, यू आर द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड, कि तू परमेश्वर का पुत्र है, यू आर द क्राइस्ट। ना क्राइस्ट का मतलब होता है मसीहा। हिब्रू लोग मसीहा के लिए वेट कर रहे थे और यहूदी क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्राइस्ट, यू आर द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड, कि तू परमेश्वर का पुत्र है जो कि आसमान और जमीन का बनाने वाला है, और तू हमारे बीच में साक्षात ह्यूमन बीइंग बन के उतर आया है। तो खुदावंद ने, यीशु ने क्या पतरस से कहा, आई पतरस सन ऑफ जोना, आई साइमन बार जोना, इट इज नॉट the flesh and the blood that has told you this. अब flesh and the blood has not told you this का क्या मतलब है? हमारी खोपड़ी के अंदर क्या होता है? ऊपर तो एक स्कल होती है और स्कल के अंदर दो चीजें होती हैं, फ्लैश यानी मतलब ब्रेन होता है एंड ब्लड होता है, नर्सें हैं और ब्रेन है। तो व्हाट वाज ही सेइंग? इंटेलेक्ट ने, ब्रेन ने तुझे नहीं बताया है दिस थिंग, it is the spirit that has told you that I am the Christ, the son of the living God. यानी परमेश्वर के बेटे के बारे में किसी के बारे में बताना, कोई ये चीज कह सके कि ये परमेश्वर का पुत्र है, thou art the son, the Christ, the son of the living God, ये आत्मा ही तुझे बता सकती है। Flesh and blood यानी brain and intellect cannot tell you this। क्या नहीं मतलब कि जब वो उन्हें सिजेरिया फिलिप्पी में लेके गया जहाँ इतने सारे फेक थे, तो इंसान का जो विश्वास है वो थोड़ा हिलने लगता है, डगमगाने लगता है कि भाई इतने विश्वास हैं, कौन किस पे क्या विश्वास करें। हम देखते हैं यीशु अपने चेलों को जान के एक ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ पर 5 बड़े बड़े मंदिर थे। 3 बड़े मंदिर का तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक टेम्पल ऑफ पान था, एक टेम्पल ऑफ ज़्यूस था, एक टेम्पल ऑफ सीजर था, और 2 और फेथ्स के टेम्पल्स वहां थे। यानी वहां पर एक और फेथ जो था वो हम देखते हैं जेरोबोआम के समय में हाई प्लेसेस में जेरोबोआम ने वहां पर एक बुल बना दिया था, बुल्स बना दिए थे 9 हाई प्लेसेस में, तो वहां बुल भी था। यानी उस बुल की वर्शिप जेरोबोआम ने चालू की थी, जिसकी वजह से परमेश्वर का गुस्सा जेरोबोआम पे आ गया था। तो क्योंकि जेरोबोआम नहीं चाहता था कि लोग जेरूशलेम को जाएं, तो और जेरूशलेम एक ऊंची पहाड़ पर बनी हुई सिटी थी, तो उसने भी ये ऊंची जगह थी सिजेरिया फिलिप्पी, तो उसने इस जगह पर जेरोबोआम ने बुल को बना दिया था। तो इस तरीके से वहां पर 4-5 बड़े बड़े टेम्पल थे जो कि डिफरेंट फेथ्स के थे, और ऐसी जगह में परमेश्वर ने वो अपने लिए एक टर्म यूज की, व्हाट डू द मैन पीपल से अबाउट द सन ऑफ मैन। अगर हम सन ऑफ मैन का टाइटल देखें तो यीशु ने अपने बारे में ये टाइटल कोई 80 बार इस्तेमाल किया है न्यू टेस्टामेंट में। तो हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को कुछ बताना चाह रहा था कि इन द मिड्स ऑफ सो मेनी थॉट पॉइंट्स, चेलों से वो पूछना चाह रहा था कि एंड हु डू यू से दैट आई एम। और तब खुदावंद ने कहा, इट इज नॉट by your own wisdom but by the power of God that you have been able to understand
अब यीशु को पता था कि जब मैं क्रूस पर चढ़ा दिए जाऊंगा, मेरे 12 चेले नो वेरी वेल दैट आई एम द क्राइस्ट, द चोजन मसाया, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि वो उसको जाने, और परमेश्वर ने कहा जो मुझे जानेगा वो मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगा। तो परमेश्वर हमको चाहता है कि हम अपने समय में से समय निकालें, गॉड को सबसे पहला स्थान अपने जीवन में देना है। यानी मतलब अपने जीवन में हम 10 कामों में लगे रहते हैं, पहले ये कर लेता हूँ, मैं फिर वो कर लूंगा, पहले ये कर लूंगा, और इस प्रकार से हम खुदा को पहला स्थान नहीं देते, और क्योंकि हम पहला स्थान नहीं देते हम पीछे रह जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे को चाहता हूँ कि तू मेरे को अपने जीवन में पहला स्थान दे। अब पहला स्थान देने का मतलब क्या है कि जब लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब वो उसको पहला स्थान देने लगते हैं, और जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। हम देखते हैं कि यीशु पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था, किस प्रकार से वो बढ़ रहा था। नाउ हम देखते हैं यहूदी लोग यीशु के चारों तरफ थे, और भी बहुत से लोग इधर उधर के लोग यीशु के पास थे, सब उससे चंगाइयां पा रहे थे, लोग बीमारियों से चंगे हो रहे थे। और किस किस बीमारियों से वो चंगे हो रहे थे? वो अंधों को आंखें दी जा रही थी, लंगड़े चल रहे थे, कोढ़ी चंगे हो रहे थे। यीशु ने हजारों को खाना खिलाया था, और एक बार नहीं कई बार उसने कभी थोड़ी सी 2 मछली और 5 रोटी से कोई 25,000 को खाना खिला दिया था। यानी 5,000 तो मैन थे, 10,000 के करीब औरतें थीं और बच्चे थे, तो उन सबका समीकरण अगर हम करें, टोटल करें, तो अराउंड 25,000 लोगों को उसने खाना खिला दिया था। एंड यीशु को खुदावंद के चेलों ने पानी पर चलते हुए देखा था, उसने हर प्रकार की बीमारी को चंगा किया था, और उसने ऐसे बड़े बड़े अचंभे के काम किए थे, और लोग उस पर भरोसा कर रहे थे कि ही इज द क्राइस्ट, ये मसीहा है, ये बचा लेने वाला है। मगर फिर भी बहुत से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनके अंदर प्री कंसीव्ड आइडियाज थे, और वो प्री कंसीव्ड आइडियाज ये थे कि यीशु जब आएंगे, लोगों के अंदर शुरू से ख्याल था कि यीशु आएंगे, वो एक वॉरियर की तरह आएंगे, वो तलवार लेके आएंगे, वो रोमन्स को हटा देंगे, वो हमें जीत दिला देंगे, वो हेरोड एंटिपस के राज्य को खत्म कर देंगे, और वो एक अपना राज्य स्थापित करेंगे। और हम देखते हैं यीशु ने जब उनको राजा बनाने लगे तो यीशु उनके बीच में से निकल गए, यानी मतलब he didn't want to become the king of the world। और इस बात से उनके ऊपर क्वेश्चन आने लग गया था कि क्या यीशु वही मसीहा है जिसकी हम प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। यानी कई बार हम किसी के बारे में पहले से ही नोशंस बना लेते हैं, और हम उन्हीं नोशंस पे उसको देखना चाहते हैं, मापदंड बना लेते हैं, और उन्हीं मापदंडों में उस बंदे को ढूंढते हैं जो मापदंड हमने बना लिए। मगर हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर हमें उस चीज से राहत दिलाने आया जो कि हमारे अंदर है, जो गुनाह हमारे अंदर है, वो उस गुनाह को खत्म करने आया, वो उस गुनाह पर विजय पाने आया, और इस चीज को वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। हम देखते हैं जब यीशु के बारे में भी, जब जॉन द बैप्टिस्ट प्रिजन में थे, तो उन्होंने अपने चेलों को भेजा, और उन्होंने कहा क्या हम किसी और का इंतजार करें? क्या तू ही है वो चोजन वन? अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत पढ़ें, तो वहां जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा और कहा आर यू द एक्सपेक्टेड वन और शैल वी लुक फॉर अनदर? क्या हम किसी दूसरे की राह देखें? यानी मतलब जॉन द बैप्टिस्ट को भी एक क्वेश्चन होने लगा। क्यों? क्योंकि यीशु के बारे में जो प्री कंसीव्ड आइडियाज थे, यीशु उनसे अलग हटकर काम कर रहे थे। डेफिनेटली उसकी मसीहाशिप के ऊपर किसी को क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो काम यीशु कर रहे थे वो कोई और कर ही नहीं सकता था। वो अंधों को आंखें दे रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, भूखों को खाना खिला रहे थे, एंड आउट ऑफ नथिंग वो 5 रोटी और 2 मछली से ऑलमोस्ट 25,000 की भीड़ को खाना खिला पा रहे थे। और कोई एक बार नहीं खिलाया था उन्होंने 4,000 की भीड़, 4,000 में
तो 4000 मैन तो अराउंड 8000 विमेन एंड अराउंड 10,000 वो तो उस समय भी 18-20 हजार लोगों को उसने रोटियां खिला दी, खाना खिला दिया। और बचे हुए जो रोटी थी, यानी इतनी रोटी बढ़ी कि जो बची हुई रोटी थी, कैसरोल के अंदर रोटी जिसको कहते हैं, टोकरियों में जो रोटी बच गई थी जो कि फर्दर यूज हो सकती थी, उससे कहीं 12 टुकड़े। हम देखते हैं कि परमेश्वर वो काम कर रहे थे जो अचंभित थे और किसी को इस बात पे क्वेश्चन नहीं था, मगर सबको जो क्वेश्चन यीशु की वजह हो रहा था वो ये था कि ये अथॉरिटी क्यों नहीं हासिल करे, ये वर्ल्डली अथॉरिटी क्यों नहीं हासिल करे। आज की तारीख में हम वर्ल्डली वेल्थ के पीछे भागते रहते हैं, हम जमाने की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं। परमेश्वर इन सब चीजों के पीछे नहीं, परमेश्वर स्कूल्स के पीछे है। परमेश्वर मुझे और आपको लीड करना चाहते हैं। यीशु के चेले जो थे, 12 चेले, वो भी at times they were very strong in faith and at times they were very weak. पतरस को उसने कहा, ओ पीटर, why did you doubt, you man of little faith? यानी मतलब कि विश्वास की तरह तरह के फ्लक्चुएट उनके करते थे, क्योंकि वो सीख रहे थे, क्योंकि अभी वो जान रहे थे। यीशु उनके साथ 2.5 साल थे और 2.5 साल में ऐसे ऐसे अचंभित काम उन्होंने देखे थे, तो विश्वास बढ़ भी रहा था। और एट टाइम उनके माइंड का जो थॉट था कि ये अपनी किंगडम को इस्टेब्लिश करा, वो उनको बार बार पीछे की तरफ घसीटता था। तो दे वर अंडर फ्लक्चुएशन। जैसा कि हम देखते हैं बाइबल में अनेकों प्रकार के विश्वासों के बारे में बताया गया है। वीक फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ, बोल्ड फेथ, रिच फेथ, अबाइडिंग फेथ, स्टेडफास्ट फेथ, डेड फेथ, प्रेशियस फेथ, कॉमन फेथ, अनफेल्ड फेथ, वर्किंग फेथ, ओबीडियंट फेथ, लिटिल फेथ, ग्रेट फेथ, डाउटिंग फेथ, परसिस्टेंट फेथ। कितने प्रकार के फेथ के बारे में बाइबल हमको बता रही है। और ये फ्लक्चुएशंस हैं जो कि उनके दिमागों में आ रहे थे। एक तरफ वो ये जान रहे थे कि ये मसीहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम और कोई कर ही नहीं सकता, अपनी पार्ट से नहीं कर सकता, ये ह्यूमन पार्ट नहीं है, ये दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल देता है। मगर फिर उनके ऊपर क्वेश्चन आता था, ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो हमारे बीच में पैदा हुआ है, यहीं पे पला बड़ा है। तो इसलिए कैपर्नौम में वो बहुत सारे विश्वास के काम नहीं कर पाया जहाँ वो पला बड़ा। यानी मतलब कि खुदावंद जो था वो बड़े बड़े काम कर रहा था, मगर बिकॉज ऑफ आवर सेंस, बिकॉज ऑफ आवर इंटेलेक्ट, बिकॉज ऑफ ब्रेन, यूजिंग टू मच ऑफ ब्रेन, वो लोग जो थे वो मसीहा को पहचान नहीं पा रहे थे, बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि मसीहा उनके पर्सपेक्टिव के मुताबिक नहीं था। यानी वो जिस मसीहा को चाह रहे थे वो सोच रहे थे घोड़े पे आएगा, तलवार की बल पे आएगा, अपना राज्य स्थापित करेगा, उसका एक बड़ा पैलेस होगा और वो एक ऐसा रूल स्थापित करेगा जिसका अंत नहीं होगा। मगर परमेश्वर उससे भी बड़ा एजेंडे पे आए थे और वो हमारे गुनाहों पर विजय पाने आए थे। और वो डाउन द जनरेशंस, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, उसकी तरफ उनका माइंडसेट लगा हुआ। परमेश्वर का माइंडसेट क्या सोच रहा था कि आई हैव टू एस्टैब्लिश अ मिनिस्ट्री जिसके अंदर डाउन द जनरेशंस, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, जो कोई परमेश्वर पर ईमान लाए वो हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने इंसान से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी परमेश्वर के लहू में एक जीवन है और उस लहू के लगा देने से, उस लहू के हमारे ऊपर छिड़के जाने से हमारे गुनाहों की माफी है और हमारे लिए हेवन का गेट खुल जाता है। पतरस से यीशु ने कहा, आए पतरस, बार जोना, सन ऑफ जोना,
ये जो बात तूने बोली है कि thou art the Christ, the Son of the living God, ये तूने अपने flesh and blood has not told it to you. Brain and intellect has not told it to you, but the Spirit has told it to you. और मैं तुझे चुन लिया है ताकि मैं तुझ पर अपना चर्च बनाऊं. You are the rock. I Patras, I Simon, you will be called Petros, Peter. यानी साइमन उसका ओरिजिनल नाम था. उसने कहा साइमन आई शमौन, अब से तू पतरस कहलाएगा. You are the rock on which I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. यानी दोज़ख के दरवाजे उसके ऊपर कभी प्रिवेल नहीं कर पाएंगे. यानी परमेश्वर का वचन जो ग्रहण करेगा, जो परमेश्वर के विश्वास में परमेश्वर को जान लेगा कि ये मसीहा है, परमेश्वर उसको अपने लहू से धो देंगे और परमेश्वर उसको हेवनली इटर्नल लाइफ देंगे. और परमेश्वर कहते हैं एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट सच अ पर्सन. यानी मतलब जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा वो सीधा परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएगा. यानी यू कैन गो इनटू हेवन विद द फेथ दैट कमथ फ्रॉम अबव. तो इस विश्वास को परमेश्वर उनके अंदर देखना चाहते थे. और तब उन्होंने कहा मेरे क्रूज पर चढ़ने से पहले किसी को न बताना कि आई एम द क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड. यानी क्राइस्ट अपने बारे में क्यों नहीं चाहते थे कि डिसाइपल्स सारी तरफ बता दें. तो उसने कहा जब तक मैं क्रूज पर चढ़ता जाऊं, क्योंकि मेरा क्रूज पर चढ़ना अनिवार्य है. मैं इसलिए आया कि क्रूज पर अपना लहू बहा दूं. और लहू बहाने से एक दिन पहले यीशु ने एक इंस्टीट्यूशन किया और वो थी इंस्टीट्यूशन ऑफ द होली कम्युनियन. कि उसने कप को लिया और ब्लेस किया और कहा ये मेरा लहू होगा, जो कोई इसे पिए वो हलाक ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा. और उसने रोटी ली और आशीष पाकर तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी और कहा तुम सब इसमें से खाओ क्योंकि मेरा बदन है. यानी गॉड वांटेड टू गिव हिज बॉडी एज अ रैंसम फॉर मेनी. यानी परमेश्वर का वचन जो है वो देदारी हो गया. और वचन देदारी हुआ तो वो यीशु के फॉर्म में इस दुनिया में उतर आया. गॉड विद अस, जीसस द इमैनुअल. और जब वो हमारे बीच में आके उतर आया तो उसने अपने आप को तोड़ दिया. यानी वचन का जब तोड़ा जाना होता है तो जब परमेश्वर का वचन यानी जब पादरी लोग समझाते हैं तो उसको कहते हैं द वर्ड बीइंग ब्रोकन एंड गिवन. तो जब तू उस वचन को खाएगा तो तेरे अंदर एक विश्वास पैदा होगा और उस विश्वास से तेरे लिए द्वार खुलते चले जाएंगे. खुदावंद मुझे और आपको वो विश्वास चाहता है जो कि ग्रेट फेथ. और वो विश्वास कब आएगा? जब हम परमेश्वर को जानेंगे. सच्ची बुद्धि का ज्ञान ये है कि हम परमेश्वर को जाने जिसे उसने परमेश्वर ने भेजा है. यीशु के चेले और बहुत से लोग, लाखों की भीड़ उसके पास आई और उसने कहा खुदावंद हेवन में जाने के लिए हम क्या करें? और यीशु ने कहा तुम उस पर विश्वास करो जिसे परमेश्वर ने भेजा है. और वो किसको भेजा है? यीशु मसीह को. तो खुदावंद मुझे और आपको चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ें. और विश्वास में हम कैसे बढ़ेंगे? विश्वास सुनने से है और सुनना मसीह के वचन से. यानी आजकल हम ऑनलाइन सर्विसेज हो रही हैं. बहुत से लोग कहते हैं हम चर्च नहीं जा पा रहे. अरे चर्च नहीं जा पा रहे तो चर्च में वचन तो घर पे सुन सकते हैं. आप इतनी दूर जाते थे फिर वचन सुनते थे और फिर उसके बाद आप वचन से तृप्त होकर आते थे. अब घर पे आपके वचन आ रहा है. जब हम वहां जाते थे तभी समय लगाते थे जाने में आने में. तो हर चीज को देखने का नजरिया है कि हम जो है वचन को घर पे बैठे बैठे सुन सकते हैं. हम वचन को अपने घर की कंफर्ट में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और डीपली उसमें बढ़ सकते हैं. जितना टाइम हम आने और जाने में लगाते थे उस समय को भी हम परमेश्वर के वचन में बिता सकते हैं अगर हम चाहें तो. तो परमेश्वर कह रहा है समय का सदुपयोग करना सीखें. और जब खुदावंद ने समय दिया है तो और बाकायदे से उसका इस्तेमाल करें तो और भी बरकत आएगी. क्योंकि विश्वास सुनने से है और सुनना मसीह के वचन से है. तो खुदावंद कहता है
डे पे, जो कि हम सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल्स का डे मना रहे हैं, तो वो हम रेवलेशन की पुस्तक को देखें तो वहां हम देख रहे हैं कि एक एंजल ने, जिसका नाम लूसीफर था, उसके अंदर गिराव आ गया। तो इंग्लिश की saying है प्राइड एट द फॉल, और जब गिराव आ गया तो खुदावंद ने उसको निकाल के बाहर किया। उसने एंजल्स को ऑर्डर दिया, यानी माइकल एंड ऑल एंजल्स ने उनको उठाकर हेवन से बाहर निकाल दिया। तो हम देखते हैं कि वो लूसीफर, जो कि एक आर्कएंजल था, एक एंजल था, वो और उसकी सारी टीम, जो उसकी फॉलोअर्स थे, सबको नीचे फेंक दिया और हेवन में उनके लिए कोई जगह ना रही। ये हमने देखा। तो माइकल एंड ऑल एंजल्स का काम क्या था कि उन्होंने इविल थॉट को बाहर कर दिया। अब हम मेंबर्स ऑफ सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल्स चर्च कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी इंसान को दूर करें। इसका मतलब है हम अपने मन के अंदर से हर एक गंदे विचार को निकाल कर फेंकें। हम अपने मन के अंदर से हर एक गंदे व्यू पॉइंट को निकाल कर फेंकें। हम अपने अंदर से ईर्ष्या को निकाल के फेंक दें। कई बार हम ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीजों में अपने आप को फंसाए रखते हैं, और तब सच में सेलिब्रेशन ऑफ सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल्स डे होगा। लेट अस नॉट हैव प्राइड इन आवर माइंड्स। हमारे अंदर गर्व का तत्व नहीं पाया जाना चाहिए। हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और तब that will be the true celebration of Saint Michael's and all angels day. Because do not let the kingdom of Satan dwell in your hearts. आपके दिल के अंदर परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान को कुछ भी जगह ना दें। हम देख रहे हैं माइकल एंड ऑल एंजल्स ने हेवन में शैतान के लिए कोई जगह नहीं दी और उसको फेंक दिया गया। और परमेश्वर कह रहा है योर हार्ट इज द थ्रोन ऑफ गॉड। परमेश्वर का थ्रोन तेरे दिल में है, तो तेरे दिल में भी ईविल के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मगर क्या हम अपने जीवन में ईविल को जगह दे रहे हैं? अपने दिल और दिमाग में ईविल को जगह दे रहे हैं? और अगर हम जगह दे रहे हैं, इसका मतलब वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग द डे प्रॉपर्ली। खुदावंद मुझे और आपको कहता है अपने जीवनों से हर एक ईविल चीज को निकाल कर फेंकें, ताकि आपके अंदर परमेश्वर का राज्य पाया जाए। लोग जब तुम्हारे कामों को देखें तो वो तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। खुदावंद मुझे और आपको कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग चमको। अगर हम भजन 103 को पढ़ें, जिसमें से हमारा पाठ लिया गया है, अगर हम उसको स्टार्टिंग को देखें तो वहां ये लिखा है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। यानी हमारा मन यहोवा को धन्य कब कहता है? जब यहोवा हमारे मन में आके विराजमान होता है। जब परमेश्वर हमारे मन में आकर विराजमान लगता है, तब हमारा मन धन्य कहता है, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो यानी तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमको जब परमेश्वर के वचन को सुनना है तो पवित्रता से सुनना है, कोई भी इधर उधर की बात को अपने मन में नहीं आने देना है, और अपना एकाग्रता से हमको परमेश्वर के वचन पे अपना मन लगाना है। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। यानी हमको अपने खुदावंद के उपकारों को याद भी रखना है। बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम आज के लोगों में क्या है कि हम उपकार जो है वो भूल जाते हैं। कोई हमारे लिए कुछ करता है, अच्छा काम करता है, हम उसके सारे अच्छे काम को भूल जाते हैं एक मिनट में। ये हमारी प्रवृत्ति होती है। परमेश्वर कह रहा है किसी के किए हुए उपकार को, मदद को मत भूल। जवाब हम परमेश्वर के उपकार तक को भूल जाते हैं, और वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे लोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, और वह तेरी जवानी को काब की नई कर देता है। परमेश्वर मुझे और आपको बरकत ही बरकत देना चाहता है। तो हे मेरे मन, परमेश्वर के उपकार को मत भूलना, उसको धन्य कहा करना, और उसके डरवइयों पर उसकी आशा जो है बनी रहती है। वो
यहोवा जो है वो सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। और मूसा को उसने अपनी गति बताई और इस्राएलियों को अपना काम प्रकट किया। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सत्रवादा वाद विवाद करता न रहेगा और ना उसका क्रोध हर समय हम पर बढ़ता रहेगा। यानी परमेश्वर हमारे को अधर्म के कामों वह उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल से उसका चल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। खुदावंद मुझे और आपको पर दया करता है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यानी परमेश्वर मुझे और आपको दया करके बचा लेना चाहता है, प्रोवाइडेड हम उसकी वचन को सुने, उस पर चलें। और जो आज का 17 आयत से पढ़ा गया कि यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। अर्थात उस पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यानी परमेश्वर के उपदेशों को स्मरण करना है, याद करना है और उसके किसी के उपकार को नहीं भूलना है, तब वो हमारे को अपना बच्चा बनाएगा और while we are yet speaking वो हमारी सुन लेगा। When we establish the Lord in our hearts, यानी हमको अपने दिलों में से हर एक प्रकार की गंदगी को, हर एक प्रकार के द्वेष को, ईर्ष्या को, सबको दूर करना है और परमेश्वर की बरकत जो है वो हमारे साथ आ जाएगी। अगर हम भजन 103 उसकी 22वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हे यहोवा की सारी सृष्टि उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। यानी मन से यहोवा का धन्यवाद करना। हम खुदावन के हाथ को देखें और मन से सच्चे दिल से धन्यवादित हो जाएं। कई बार खुदावन के विचारों को हम अपने दिल में घुसने ही नहीं देते। खुदावन कहता है मेरे विचारों को अपने अंदर ले लो और अपने मुंह से कुछ भी गलत शब्द न निकालो, क्योंकि जब तुम गलत शब्द निकालते हो तो गलत होता है। यानी मतलब तुम्हारे शब्दों में एक ताकत है और उस ताकत को समझने की कोशिश करो। कभी भी नेगेटिव मत बोलो। हमारे घरों में छोटी छोटी बातों में हम नेगेटिव बोलना चालू कर देते हैं। थोड़ा सा हमारा कुछ भी थॉट आता है हम नेगेटिविटी से अपने घर को भर देते हैं। खुदावंद कह रहा है अपने घर को पॉजिटिविटी से भर दो। Be my angels, Michael and all angels, be my angels. Fill your hearts with the light of the word of God. अपने दिलों को, अपने दिमागों को परमेश्वर की रोशनी और उसकी बरकत से भर दें। तब परमेश्वर से तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद हमें धन्यवाद वाला मन इनायत करें। प्रभु परमेश्वर मैं अपने आप को और अपनी कलीसिया को खुदावंद तेरे पास लाता हूँ। इस सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल्स डे पर खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस चर्च को यहाँ एस्टैब्लिश किया और खुदावंद बहुत से लोगों ने यहाँ पर वर्शिप की और दुआएं की और खुदावंद अपनी दुआओं का असर पाया, अपनी बरकतें पाई। और खुदावंद तेरा वचन कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम तेरे किसी उपकार को ना भूलें, तेरी बरकतों को पाएं और खुदावंद तेरे बरकतों में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांग करते हैं, आमीन। 21 जून 2020 को हमारी एक पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर ये डिसाइड किया गया क्योंकि चर्च ऑनलाइन सर्विसेज हो रही हैं और कब तक होंगी अभी हमें पता नहीं है, तो आप अपने घरों में जिस समय सेकंड गाना होता है, चंदे का गीत होता है, आप सब लोग अपने चंदे को एक जगह पर एकत्रित करें, थैली में एकत्रित करें और फिर उस चंदे को आप ट्रांसफर कर दें। चर्च का अकाउंट इज ऑन द स्क्रीन ऑलरेडी, तो आप उस पर अपने अमाउंट्स को ट्रांसफर कर दें और उसकी सूचना आप हमें दे दें। अगर आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं तो आप हमें सूचना दें और अगर आप डोनेशन दे रहे हैं या ऑफरिंग दे रहे हैं तो फ्री विल ऑफरिंग के लिए आपको कोई सूचना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम चंदे की थैली आती है हम उसमें डालते हैं तो उसका हम कोई भी
रसीद आपको नहीं देते। तो इफ यू आर जस्ट पेइंग इट एज अ फ्री विल ऑफरिंग देन यू डोंट नीड टू इन्फॉर्म अस, बट इफ यू आर पेइंग योर सब्सक्रिप्शंस तो आप हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम आपको रसीद दे सकें। प्रभु आप सबके साथ हो। ये समय होगा कि हम अपना दूसरा गीत गाएंगे। वी विल सिंग आवर ऑफिशियल हिम। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस शारदा से हम सब आए, हम तो सलाहे हम गीत गाए, बात मुश्किल करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान करो, उसकी नरमां चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। इस समय मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर सिरिल पीटर जेन से कि वो ऑफरिंग के लिए और सेंट माइकल्स डे के लिए स्पेशल प्रेयर करें। आइए हम प्रार्थना करें। तेरा धन्यवाद प्रभु तेरी तमाम आशीषों के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे प्रभु जी कि हम सब मिलकर तेरी इस आराधना में शामिल हो सके। इस वचन के लिए मेरे प्रभु जो हमारे बीच में बोया गया है, हमारे जीवनों में बहुतायत से प्रभु जी फलवंत हो। प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु 29 सितंबर के लिए, जबकि हमारे सेंट माइकल्स ऑल एंजल चर्च का दिन है। इसी कारणवश इस वर्ष प्रभु जी हम सब एक जगह इकट्ठे होकर
उसको भव्य तरीके से नहीं मना सकते, परंतु प्रभु हम जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घरों में रहकर प्रार्थना सहित अपने चर्च की बढ़ोतरी के लिए मंगल कामना करते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी वो सब दान के लिए जो प्रभु जी जो लोगों ने अपने भंडार में से तुझे दिया है, सबको आशीष दे मेरे प्रभु जी, और प्रभु जी ताकि और इस दान में प्रभु जी और बढ़ोतरी हो सके, इस पर तेरी आशीष हो और परमेश्वर के राज्य के कामों के विस्तार के लिए एक इस्तेमाल में लाया जा सके। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरे प्रभु जी उन्हें आशीष दे कि इसको विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी इस पूरे धन का प्रभु जी उपयोग में ला सके। हम में से हर एक को आशीष दे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. And now with the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be amongst us, and remain with us always. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us, and remain with us always. Amen. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, give you His grace to follow Him. Amen. आप सब लोगों को जय मसीह की